کہ کراچی پولیس کی اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ایک سال کے دوران کی جانے والی کارروائیاں ناقص تفتیش کی نظر ہو گئیں۔ رواں سال 6000 سے زائد ملزمان گرفتار ہوئے، لیکن صرف 3 ملزمان کو عدالت سے سزا ہو سکی ہے، جس کا اعتراف پولیس چیف نے بھی کر لیا ہے۔ معراج اختر سے بات کریں گے۔ معراج، کافی ناقص کارکردگی رہی ہے کراچی پولیس کی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ناقص تفتیش کے معاملات اور ہیں، لیکن بہت بڑا اعتراف کیا ہے کراچی پولیس چیف قادم حسین زند نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ رواں سال جو ہے 6000 سے زائد اسٹریٹ کرمنلز انہوں نے پکڑے ہیں۔ ایک بہت اچھی کارکردگی ہے کراچی پولیس کی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، لیکن اس میں حیرتناک بات یہ ہے کہ صرف 3 افراد ایسے ہیں جن کو جو ہے سزا ہو پائی ہے زیادہ، اور اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزموں کی زیادہ سے زیادہ 7 سال قید کی سزا ہوتی ہے، جو لیکن صرف 3 کیسز ایسے ہیں جن میں اسٹریٹ کرمنلز کو عدالت سے 1 سال کی سزا ہوئی ہے، اور 50% سے زائد جو کیسز ہیں ان میں اسٹریٹ کرمنلز کو 1 سے 3 ماہ کی سزا ہوئی، اس کے بعد وہ چھوٹ کر دوبارہ باہر آ گئے اور شہر میں دندناتے پھرتے رہے اور شہری پورے سال رکتے رہے۔ ایڈیشنل آئی جی نے یہ بھی جو ہے الزام لگایا ہے، ایک سوال اٹھایا ہے عدالتی نظام پر، سزائیں نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے کرمنلز کی سزائی ہوتی ہے۔ اگر جرم کرنے والوں کو پوری طرح 7 سال کی جو ان کی سزا مقرر ہے وہ مل جائے تو شاید یہ باہر آ کے جرائم نہ کرے یا ان میں کمی آ سکتی ہے۔ بہرحال جو ہے اسٹریٹ کرمنل جو انہوں نے پکڑے ہیں وہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 30 سے زائد بار جیل گئے اور کچھ ہفتے بھی ضمانت سے رہا ہو کر واپس آ گئے۔ اسٹریٹ کرمنلز کو سزائیں نہ ملنے اور آسانی سے ان کی ضمانتیں ہو جانے کی وجہ سے بھی اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، اور یہ دعویٰ ہے پولیس کے چیف نے مجموعی طور پر رواں برس جو ہے عدالت جو ہے ان کو سزا دی ہے، جن میں سے 3 باقی سب 2 سے 3 ماہ جو ہے باہر آ گئے۔ اور رواں سال میں کراچی پولیس نے 1019 جو ہے ڈاکو ہیں ان کو زخمی حالت میں بھی گرفتار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا ایک اعتراف کیا ہے پولیس کی۔ جی بالکل، ایک بہت بڑا اعتراف کیا ہے۔ معراج ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اعتراف کیا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میں اس سال کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ قریباً کوئی 78 یا 79 لوگوں کو ٹوٹل صرف سزائیں ہوئی ہیں کورٹ میں۔ اسٹریٹ کرائم کی جو سزا ہے وہ 7 سال ہے میکزیمم، اور اتنا ہی فائن ہوتا ہے جتنا اس نے فائنینشیل کرائم کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ صرف 3 ایسے کیسز ہیں جس میں 1 سال کی سزا ہوئی ہے، اور 50% سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جس میں 3 مہینے یا اس سے بھی کم 1 مہینہ سزا ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرمنل کو انکریج کرتی ہیں۔ جب سزا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کورٹ مطمئن ہے کہ پروسیکیوشن صحیح ہوئی ہے، انویسٹیگیشن صحیح ہوئی ہے اور اس نے وہ جرم کیا ہے۔ لیکن جب جرم کیا تو کم از کم اس کو اگر پوری سزا 7 سال کی مل جاتی تو وہ باہر نکل کے دوبارہ جرم نہ کرے۔ ایسے بھی کرمنل پکڑے ہم نے جو 30 مرتبہ ہم نے پکڑ کے جیل بھیجے ہیں، اور وہ 30 مرتبہ باہر آ جاتے ہیں۔ ضمانتوں کا سسٹم ایسا ہے کہ آسانی سے ان کی بیل ہو جاتی ہے، اور پھر جب سزائیں ہوں گی تو اس سے بھی جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ رہا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی ہے پولیس چیف کی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے بیورو چیف فہیم صدیقی نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ فہیم، 5997 افراد کو چھوڑ دیا گیا، شک کی بنیاد پر معصوم بھی قرار دے دیا گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کارکردگی کیا ہے ہماری پولیس کی؟ جی میں نے بہت عرصے کے بعد جو ہے کسی پولیس آفیسر کو اتنی بہادری سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے تک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ پولیس افسران جو ہے دہشت گردی کے معاملات میں جب ملزمان کو عدالتوں سے رہا کیا جا رہا تھا تو وہ بول رہے تھے، وہ عدالتی نظام کے اوپر بات کر رہے تھے۔ بہت عرصے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کی، اور اسٹریٹ کرائم جیسے اہم ایشو کے اوپر انہوں نے یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آج ہم سے HD21 سے شیئر کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ہم مختلف وقتوں میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارا پروسیکیوشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہمارا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ملزمان 1 سال میں 14 مرتبہ جو ہے ہم نے رپورٹ کیے ہیں جو جیل گئے ہیں 1 سال کے اندر اور پھر باہر آئے ہیں۔ وہ تو آج بتا رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تعداد میں بھی لوگ جو ہیں وہ 1 سال کے اندر یا کچھ عرصے میں جو ہے وہ گرفتار ہو کے جیل گئے اور پھر رہا ہو کر باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایک گینگ ہے جو باقاعدہ طور پر یہ سب کچھ کرتا ہے، جو سسٹم کو باقاعدہ طور پر اپنے حق میں یوز کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی اطلاعات بھی ماضی میں رہی ہیں، اور ابھی بھی ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے اپنے پیرول پر اپنے پینل پر وکلا ہوتے ہیں، اور وکلا جو ہے ان کو اس بات کی
باقاعدہ سیلری ہر مہینے دی جاتی ہے کہ اگر ملزم پکڑا جائے گا کسی بھی کیس میں تو وہ اس کی ضمانت کرائیں گے. آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی اسٹریٹ کرمنل پکڑا جاتا ہے تو جس وقت وہ عدالت میں لے جایا جاتا ہے اس کے ساتھ 7-8 وکیل کھڑے ہوتے ہیں, پورا پینل کھڑا ہوتا ہے, اور پھر وہ عدالتی سسٹم میں جو بھی ہمارے یہاں خامیاں ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ملزمان جو ہے وہ بآسانی باہر آ جاتے ہیں. اس شہر میں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں انجینئر, ڈاکٹر, خواتین, نیول آفیسر, پولیس افسر سب جو ہے وہ مارے گئے ہیں, اور نوجوان خاص طور پہ بہت زیادہ مارے گئے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز گرفتار ہوتے ہیں, اگر کبھی گرفتار ہو بھی جائیں تو وہ جو کس طرح سے عدالتوں سے باہر آ جاتے ہیں. اسی لیے مجبوراً اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پولیس نے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا. اچھا فہیم, ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی 10-12 دن پہلے کی بات ہے, ہمارے رپورٹر نے کراچی پولیس چیف سے ہی سوال کیا تھا تمام معاملات پہ جو بھی چل رہا ہے اس وقت کراچی میں, تو انہوں نے کہا تھا نہیں بہت زیادہ کمی آئی ہے کرائم میں. آج ایسا کیا ہوا کہ انہیں اعتراف کرنا پڑ گیا؟ نہیں دیکھیں, جو اس وقت انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے افغانیوں کے حوالے سے کہا تھا کہ جب افغانیوں کو 17 اکتوبر سے ان کی واپسی شروع ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے اسٹریٹ کرائم میں خاص طور پہ کمی آئی ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اور لیکن جو آج وہ ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں وہ پورے سال کا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں. تو یہ حقیقت بھی ہے کہ غیر قانونی افغانی تارکین وطن جو یہاں موجود تھے ان کی واپسی کے بعد جو ہے اسٹریٹ کرائم کے ڈیٹا میں بہت ہی خاص جو ہے وہ گرتا ہوا وہ ہمیں نظر آیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اسٹریٹ کرمنلز کے حوالے سے جو پورا ڈیٹا ہے اس میں افغان جو گینگز تھے وہ خاص طور پہ کسی بھی شہری کو لوٹنے کے بعد اسے زخمی کر دینا یا اسے گولی مار دینا ان کی طرف سے ایک معمول کی بات سامنے آئی تھی. میں ایک دوسری بات جو آپ سے کہنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اس ساری صورتحال میں اب کراچی پولیس کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ رات کے اوقات میں 4 سے 5 پولیس مقابلے کراچی پولیس کرتی ہے. بظاہر وہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ مبینہ پولیس مقابلے ہوتے ہیں. ان میں پولیس جو ہے اس نے ایک ٹرم کو یوز کر رہی ہے کہ جو بھی اسٹریٹ کرمنل پکڑا جاتا ہے اس کے بارے میں انہیں یہ کنفرم ہو کہ اس نے جو ہے کوئی ڈکیتی کی واردات کی ہے, کسی کو لوٹا ہے, تو اس کی ٹانگ میں گولی ماری جاتی ہے. تو یہ ہاف ٹرائی کی اس وقت جو مہم جو ہے وہ کراچی پولیس مجبوراً شروع کرنے پر مجبور ہے اور کر رہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عدالتوں سے ڈیفینیٹلی وہ اس طرح سے ملزمان کو سزائیں کرانے میں ناکام ہے. اس میں پروسیکیوشن کی بھی بہت بڑی خامی ہے, بہت بڑی اس وقت کوتاہی ہے کہ جب کیس بنتا ہے اس وقت کیس کو ایسا کیوں نہیں بنایا جاتا کہ اس کیس کی بنیاد کے اوپر, گواہوں کی بنیاد کے اوپر, شہادتوں کی بنیاد کے اوپر, فورینسک کی شہادتوں کی بنیاد کے اوپر آپ عدالتوں سے ملزمان کو سزائیں کرانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو پولیس کی جانب سے کہی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ عوام تعاون نہیں کرتے. تو یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جب کسی کے مدعیت میں مقدمہ ہو بھی جائے تو شہری پولیس تھانے اور عدالتوں کے چکر سے بچنے کے لیے گواہی کے لیے بھی پیش نہیں ہوتا, اور عموماً عدالتیں جو ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو دیتی ہیں. تو اوور آل یہ آج کی بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑا اعتراف ہے کراچی پولیس چیف کی جانب سے. ماضی میں تو ہمیں پولیس افسران عدالتی نظام پر سوال اٹھاتے نظر آتے تھے لیکن کچھ عرصے سے ہم نے اس سارے معاملے کے اوپر خاموشی دیکھی تھی. آج یہ خادم حسین رند صاحب کی جانب سے میں سمجھتا ہوں بہت ہمت کا مظاہرہ کیا گیا اور انہوں نے بہت ہی شفافیت انہوں نے بات کی, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اب اگر میرے ساتھ سے اسٹریٹ کرائم کا واقعہ ہو جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ ملزمان کو عدالتوں سے سزا ہو, لیکن اگر میں یہ دیکھوں گا کہ وہی ملزمان جو عدالتوں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں تو میرا اعتماد سسٹم کے اوپر, اس کے اوپر, عدالتوں کے اوپر ڈیفینیٹلی وہ شیک ہوگا. جی بالکل, بہت ہمت کی بات ہے اور جرت کی بات ہے, اور انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ عدالتی نظام میں بہت زیادہ خامیاں ہیں, ناقص تفتیش ہے. بہت شکریہ بیورو چیف فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. معراج, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بھی شکریہ. اداکار بچوں کے لیے قانون بن گیا ہے. اسکول کے اوقات میں اور رات دیر تک شوٹنگ ممنوع قرار دی گئی ہے. وزارت ثقافت نے نئے قوانین تیار کر لیے ہیں. چلڈرن ڈرامہ انڈسٹری آرڈیننس اور سندھ ایکٹ رائلٹی آرڈیننس شامل ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ چلڈرن ڈرامہ انڈسٹری آرڈیننس کے تحت بچوں کے ورکنگ آور طے کیے جائیں گے. اداکار بچوں کے لیے قانون بن گیا ہے. چائلڈ سٹار بچوں کے لیے جو ہے قانون بنایا گیا ہے. اسکول کے اوقات میں اور رات دیر تک شوٹنگ اب نہیں کی جا سکے گی. وزارت ثقافت نے یہ 2 نئے قوانین تیار کر لیے ہیں. چلڈرن ڈرامہ انڈسٹری آرڈیننس اور سندھ ایکٹر رائلٹی آرڈیننس شامل ہیں. چلڈرن ڈرامہ انڈسٹری آرڈیننس کے تحت بچوں کے ورکنگ آور طے کیے جائیں گے. وزارت ثقافت نے 2 نئے قوانین تیار کیے ہیں. آئمہ خان سے بات کریں گے. آئمہ, یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کیونکہ جو چائلڈ سٹار ہے ان کا بہت سا وقت ضائع ہوتا ہے. جی بالکل, نگراں صوبائی وزیر ثقافت جنید علی شاہ نے جو ہے وہ ایک انقلابی اقدام اٹھایا ہے. وزیر ثقافت نے فنکاروں کو نوید سنا دی ہے. وزیر ثقافت نے اداکار بچوں کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے. اسکول کے اوقات میں اور رات دیر تک شوٹنگ ممنوع قرار دے دی گئی ہے. یہ ایک اچھا اسٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں. وزیر ثقافت نے 2 نئے قانون تیار کر لیے ہیں. چلڈرن ڈرامہ انڈسٹری آرڈیننس اور
सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के नाम से 2 नए कानून तैयार कर लिए गए हैं। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर तय किए जाएंगे। ड्रामा और फिल्मों में काम करने वाले बच्चों को स्कूल के औकात में काम पर नहीं बुलाया जाएगा। बच्चों को रात देर तक शूटिंग और रिकॉर्डिंग के लिए नहीं रोका जाएगा। बच्चों को स्कूल के औकात में और रात देर तक शूट पर बुलाने पर कार्रवाई भी होगी। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस एक्ट से इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों की तालीम में खलल नहीं आएगा। वजीर सकाफत ये भी कहते हैं कि ख्वाहिश है कि आर्टिस्ट बच्चे अपना काम और तालीम साथ साथ जारी रखेंगे। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस कार्रवाई भी करेगी। सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के तहत फनकारों को तहफ्फुज़ भी मिलेगा। फिल्म और ड्रामा के सोशल मीडिया और दीगर मुनाफा में से फनकारों को रॉयल्टी दी जाएगी। वजीर सकाफत में रजिस्टर्ड फनकार रॉयल्टी से मुतालिक कमेटी से रुजू भी कर सकते हैं। जी ठीक है आयमा, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर सकाफत जुनैद अली शाह ने इस पर गुफ्तगू भी की। आइए आपको दिखाते हैं। सिंध के फनकारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 2 नए कानून बनाए जा रहे हैं। पहला कानून चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के नाम से आएगा। दूसरा कानून जो है सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस के नाम से आएगा। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस जो है उसका बेसिक मकसद ये है कि जो बच्चे यानी कि जो 18 साल से कम उम्र एक्टर्स एक्ट्रेसेस ड्रामों में, वेरियस ड्रामों में या एड्स में आते हैं तो उनकी वर्किंग आवर्स कहीं पे भी डिफाइन नहीं थी। हमने वर्किंग आवर्स डिफाइन कर दिए ताकि साथ साथ बच्चों की एजुकेशन भी चलती रहे और उनको अक्सर और बेशतर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स जो हैं रात को 4 बजे 3 बजे बुला लेते थे शूट्स पे, तो उसको अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ताकि साथ साथ एजुकेशन भी बच्चे करें और अपने काम पे भी ध्यान दें। दूसरा सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी कानून था जो कि मिसिंग था। इसमें होता यह है कि जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, जो सिंगर्स हैं, जो फनकार हैं हमारे, वो उनको वन ऑफ पेमेंट हमेशा मिल जाता था प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की तरफ से, ओनर्स की तरफ से, लेकिन उनको फिर उस पर रॉयल्टी नहीं मिलती थी। यानी कि अगर वो गाना रीप्ले हो कहीं पे, वो सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अगर चले तो उसकी जो रॉयल्टी जनरेट होती है वो एक्टर्स तक नहीं पहुंचती थी। तो अब हम उस कानून को भी डिफाइन करने जा रहे हैं। इट्स गुड न्यूज़ फॉर आवर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, आवर सिंगर्स, फनकार हमारे, म्यूजिशियंस हमारे। उसमें एक दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक डेटाबेस भी जमा हो जाएगा फनकारों का, ताकि हम अपनी इंडाउमेंट में से उनको अगर हेल्प करना चाहें तो हमारे पास उनका सारा रजिस्टर्ड डेटाबेस भी होगा अदाकारों का। और एक ग्रीवियंस कमेटी भी बनाई गई है। अगर अदाकारों के कोई मसाइल होंगे तो वो ग्रीवियंस कमेटी जो है कल्चर डिपार्टमेंट की के साथ बैठ के उनको और उनकी मदद करेगी। अब बात कर लेते हैं सियासी मैदान से। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज़ ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की भी स्क्रूटनी जारी है। आपको बताते चलें कि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ अजला पर मौजूद होंगे। अभी हमें आज़ाद नोहड़ियों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। आज़ाद, सुबह हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो लेट था, ये बताइएगा कि वो कब पहुंचा और ये भी बताइएगा कि अब तक स्क्रूटनी का अमल जो है वो कितना हो गया है। आज़ाद नोहड़ियों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज़ है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी जारी है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है और ये 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 2 दिन बाकी रह गए हैं। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी जारी है। बात करने के लिए आज़ाद नोहड़ियों हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, स्क्रूटनी का अमल जारी है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली और सिंध असम्बली में अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों पर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल आज चौथे रोज़ भी जारी है। 2 घंटे की ताख़ीर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर सुबह इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल शुरू हुआ, जिसमें इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाली शाहिदा रहमानी के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल की गई और उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए, जिसके बाद जो शाहिदा रहमानी
रहमानी यहाँ से रवाना होगी। 1 घंटे के अंदर जो सिर्फ शाहिदा रहमानी के कागजात की जाँच पड़ताल की गई, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं। उनके कागजात जाँच पड़ताल की भी की जा रही है। लेकिन इस वक्त जो है खासतौर पर GD से ताल्लुक रखने वाले अकलती नशस्तों पर उम्मीदवार जो चेतन मल है, इसके अलावा भागचंद भील है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके कागजात की भी जाँच पड़ताल की जाएगी। आज चौथा रोज़ है। मजमूई तौर पर आज तक जो है इब्तदाई तौर पर जो खासतौर पर कागजात की जाँच पड़ताल की गई, 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिया गया। लेकिन जाँच पड़ताल का अमल जो है 30 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें दीगर जमातों को भी उम्मीदवारों को भी तलब किया गया। 30 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तलब किया गया, उनको तारीख उनके लिए मुकर कर दी गई। वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे कल नहीं परसों और वो अपने कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल में जो हिस्सा लेंगे। आज जो है मखसूस नशस्तें हैं, खासतौर पर अकलियतों की और खवातीन की, उन पर कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल चौथे रोज भी जारी है। जी ठीक है आज़ाद, आप हमें इलेक्शन कमीशन ऑफिस से रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है और 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जांच पड़ताल होगी। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के भी कागजात मंजूर हो गए हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदगान के जो हैं वो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। हमारे साथ आज़ाद नोहड़ियो ही मौजूद हैं, उनसे एक मरतबा फिर बात करेंगे। आज़ाद, ये बताइएगा कि मज़ीद कितने उम्मीदवार जो हैं यहाँ पर उनका आना अभी बाकी है, और आज कुछ लोग आए थे उनको वापस जाना पड़ा, वो कौन थे? जी बिल्कुल, वो उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इस्तेकाम पार्टियों से था। उनके उम्मीदवार यहाँ पर पहुँचे थे। कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनके इन पार्टियों की जन्म से इनके जो तरजीह फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल नहीं की गई है, जिसमें ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या तहरीक इस्तेकाम पार्टी है, इनकी उम्मीदवार तो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनकी जनाब से उनके फहरिस्तें यहाँ पर मौसूल नहीं हुई है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनब से जो फहरिस्त यहाँ पर अरसाल की गई है वो ताहाल यहाँ पर आवीज़ा नहीं की गई, लेकिन उम्मीदवार जो यहाँ पर पहुँचे उनको कहा गया उनके लिए 30 दिसंबर की तारीख मुकर कर दी गई। उस दिन जो उनके कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन यहाँ जो मेन गेट यहाँ पर जो फहरिस्तें आवीज़ हैं उनमें वो फहरिस्त भी शामिल नहीं है, जिसमें कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो या अकलियतों की मखसूस नशस्त सिर्फ एक है, जिसमें जो है लजपत भील है, उनका लिस्ट जो यहाँ पर आवीज़ा की गई, लेकिन वो भी कुछ 2 दिन कबल यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए। कागजात नामजदगी उनके अभी मंजूर नहीं हुए थे। ठीक है आज़ाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। खुर्शीद रहमानी ने मरी डिस्ट्रिक्ट से हमें जो है वो ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा खुर्शीद, किस किस को तलब किया गया है आज स्क्रूटनी के लिए? इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के बाहर से, और आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है, उसका चौथा रोज़ है। अब तक की जो सूरत हाल हमने परखी है और जांची है, और ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि 10 से 15 जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं उनकी जांच पड़ताल हो चुकी है। और उसके अलावा जो अगर हम सूबाई असम्बली की नशिस्तों की बात करें तो 6 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। उसके लिए अब तक की जो उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं, तकरीबन 18 के करीब उम्मीदवार यहाँ पर आए हैं जिनकी जो कागजात नामजदगी है उनकी जाँच पड़ताल मुकम्मल की गई है। अब तक की जो सूरत हाल में किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी उम्मीदवार का कोई भी कागजात जो है वो मुस्तरद नहीं हुआ है। तकरीबन 15 के करीब कौमी और 18 के करीब सूबाई असम्बली के जो कागजात हैं वो मंजूर किए गए हैं, और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनान के उम्मीदवार जो हैं इसमें शामिल हैं। ये कागजाती नामजदगी का जो जांच पड़ताल का अमल है शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 30 दिसंबर बताई जा रही है। इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ मौजूद है। उम्मीदवार को जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो वक्त दिया गया है उस पर उम्मीदवार यहाँ आ रहे हैं, और अपने कागजात नामजदगी के हवाले से यहाँ पर जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी, जांच पड़ताल का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ठीक है खुर्शीद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का चौथा रोज़ है। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी जारी है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। आज चौथा रोज़ है और 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो जारी रहेगी। अगर हम पार्टीज़ के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIFA, नून लीग और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो एक नई पार्टी आई है उसके भी जो है वो यहाँ पर नुमाइंदगान आ रहे हैं और कैंडिडेट्स आ रहे हैं कागजात नामजदगी की
जांच पड़ताल हो रही है। और अगर हम नाम लें, कराची के मशहूर नाम लें तो कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी के कागजात जो हैं वो जमा हो गए हैं, मंजूर हो गए हैं। अनिल कुमार और आदिल अस्करी के कागजात भी मंजूर हुए हैं। पीपल्स पार्टी की मलिहा मंजूर, शाह मोहम्मद शाह के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। काफ लीग से बिस्मा होती और तहरीक लब्बैक के शर्जील गोपलानी के कागजात भी जो हैं वो दुरुस्त करार पाए हैं। किमाड़ी से JUIFA के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के एहसान खटक के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि आज चौथा दिन है और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी रहेगी। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी जारी है। आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। 30 दिसंबर तक इन कागजात की जांच पड़ताल जो है जारी रहेगी। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वो हमें रिपोर्ट करेंगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। अक्सा, बताइएगा आज कौन कौन आ रहा है यहाँ पर स्क्रूटनी के लिए? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 की जो सरगर्मियां हैं वो उनकी गहमा गहमी मुसलसल तौर पे लगी हुई है। जो पहला मरहला था उसमें कागजात नामजदगी जमा कराने का था और अब जो दूसरा मरहला है उसमें कागजात की जो है वो जांच पड़ताल का जो आज चौथा रोज़ है। और यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान 1 बजे यहाँ पर आएंगे, अपने कागजात की जाँच पड़ताल के लिए जो है वो यहाँ पर पेश होंगे। गुज़िश्ता 3 दिनों में हमने ये देखा कि मुस्तफ़ा कमाल, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, ख्वाजा सुहेल मंसूर कि जिन्होंने NA से कागजात जमा करवाए थे उनकी स्क्रूटनी हुई, उन्होंने यहाँ पर हाजिरी लगाई और उनके कागजात जो है वो यहाँ पर मंजूर हुए। रेहान हाशमी ने भी जो है NA से यहाँ पर कागजात जमा करवाए थे, उसकी स्क्रूटनी के लिए वो यहाँ हाजिर हुए थे। आज PS के लिए जो है वो यहाँ पर अपने कागजात के लिए हाजिरी लगाएंगे 3 बजे PS 124 में और अपने कागजात की जो है वो जाँच पड़ताल के लिए यहाँ पर पेश होंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी यहाँ पर आएगी, MQM से रेहान हाशमी आएंगे, अब्दुल वसीम आएंगे, मोहम्मद नईम आएंगे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अहम शख्सियत हैं, यहाँ पर आज कागजात के लिए हाजिरी लगाएंगे। गुज़िश्ता 3 दिन में जो है वो सूबाई असेंबली की 9 नशिस्तों पर 100 कागजात की जो है वो स्क्रूटनी हो चुकी है और कौमी असेंबली की 4 नशिस्तों पर 50 से ज़ायद फॉर्म की जो है वो स्क्रूटनी मुकम्मल की जा चुकी है। जो स्क्रूटनी का सिलसिला है उसका जो है वो 30 तारीख को आखिरी रोज़ होगा। ये जो सिलसिला है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जारी रहता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज जो है आरोप है वो कुछ देर से आए थे क्योंकि जो स्क्रूटनी का अमल है मुकर्रर टाइम देने के बाद भी जो है उम्मीदवार यहाँ पर 12 बजे के बाद ही अपनी हाजिरी लगाते हैं और सुबह के वक्त जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा रहता है। सिटी 21 ने ये फहरिस्त लिस्ट, इब्तदाई फहरिस्त जो है वो हासिल की थी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 21,44,926 की आबादी है, यानी ये कुल आबादी जो है वो यहाँ से निकलेगी 8 फरवरी को और जो है उम्मीदवारों को वोट देगी। लेकिन ये तो बहुत बाद का मरहला है, अभी जो है वो यहाँ पर स्क्रूटनी का मरहला चल रहा है। अभी तो बहुत बाद के मराहिल आने, अभी जो है इब्तदाई मराहिल जारी हैं, स्क्रूटनी का अमल जारी है। अक्सा, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ज़िला शर्की में कौमी असेंबली की 4 और सूबाई असेंबली की 9 नशिस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल जारी है। इस पर बात करने के लिए जुनेद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी, जिला शर्की में स्क्रूटनी का आज चौथा रोज है। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के जो नुमाइंदगान आ रहे हैं और अपने कागजात की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जिला शर्की के अंदर 4 NA और 9 PS लगते हैं। वहां से मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जो है यहाँ पर इस वक्त रुजू कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं। PS 99 से इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। मोहिद अनवर साहब, ये बताएगा कि आपके कागजात मंजूर कर लिए गए हैं और कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे कागजात मंजूर हो गए हैं और कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। बल्कि मेरे क्या पूरी पार्टी में हमारे माशाल्लाह 99% जो कागजात जमा कराए गए थे वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो गए हैं और कहीं ऐसा इशू नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह MK मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पूरा एक सिस्टम है, पहले से सारी चीज़ें हमारी चेक होकर ही आती हैं, मरकज़ से होती हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं आया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सबने हमारे जहाँ हमने कागजात जमा कराए वहाँ पे एक्सेप्ट हो गए हैं। आप जिस हल्के से इलेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर माजी में भी MQM ही रही है, फिर 2018 में एक गैप आया, तो आप समझते हैं कि इस गैप के बाद MQM पर लोग इतना एतमाद करेंगे कि लोग वोट देंगे?
नहीं जी, इंशाल्लाह आप ये देखेंगे जो हमारा मैंडेट छीना गया था, एक तरह से जो छीना गया था और जिस तरीके से हमारे साथ धांधली कर हमारे जो सीटें छीनी गई थी, इंशाल्लाह आप 2024 में देखेंगे कि हम भरपूर तरीके से जिस तरीके से माजी में हमारी सीटें थी उस तरीके से हमारी सीटें इंशाल्लाह इस इलेक्शन में आएंगी। और लोग भी इस वक्त मैं ये समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वाहिद वो जमात है, कराची में कह लें, सिंध में कह लें, देखें अभी भी हमारे ही बड़े इज्तिमा हो रहे हैं, हमारे ही जलसे हो रहे हैं, हमारी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और लातादाद तो ड्राइंग रूम मीटिंग्स या छोटी छोटी मीटिंग तो काफी हो रही है, पर हमने कराची के अंदर अभी तक 8-10 बड़े जलसे कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग कर चुके हैं, अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से बड़ी बड़ी कर चुके हैं मीटिंग्स। तो मैं ये समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस वक्त फुल फ्लैश नजर आ रही है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को भी आपको अच्छी रिजल्ट के साथ नजर आएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन इमरान है के दिखाएंगे कि पीछे की जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफिस है और यहाँ पर भी जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो जारी है। ताहम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो आरओ साहिबान बैठे हुए हैं उनसे भी लोग आकर जो है वो मिल रहे हैं, अपने कागजात की जांच पड़ताल करवा रहे हैं। आज जैसा कि मोईद अनवर यहाँ पर पहुंचे हैं, एमक्यूएम के रहनुमा, इसी तरीके से दीगर पार्टियों के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ये बताया गया है कि आज जो है वो एमक्यूएम के अरशद वोहरा जो कि एमक्यूएम के रहनुमा है, जिनके दीगर जो अजला है वहाँ पर भी उन्होंने कागजात नामजदगियाँ जमा कराई हैं, ताहम आज वो भी यहाँ पर आएंगे जिला शर्की में और अपने कागजात की जांच आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। मीर केरियो ने हमें किमाड़ी से ज्वाइन कर लिया है, बताइएगा स्क्रूटनी के हवाले से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की जांच पड़ताल का आज चौथा रोज़ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िले के मारी की डीसी ऑफिस में, जहां आज भी जो है उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी है। ज़िले के मारी में जो है 5 सूबाई असम्बली के 5 हलकों जबकि कौमी असम्बली के 2 हलकों पर जो है जाँच पड़ताल जारी है। PS 111 पर जो है 36 उम्मीदवारों ने, PS 112 पर 35 उम्मीदवारों ने, जबकि PS 114 पर 42 उम्मीदवारों ने, जबकि PS 115 पर जो है 37 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। जबकि कौमी असम्बली के हल्के 242 पर जो है 43, जबकि 243 पर जो है 27 उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। ये आज चौथे रोज़ भी जो है उम्मीदवार मुसलसल यहाँ आ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार भी जो है अपनी स्क्रूटनी के लिए यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि ये सिलसिला जो है 30 तारीख तक जारी रहेगा, उसके बाद जो है हतमी फ़र्ज जो है जारी कर दी जाएगी। जी ठीक है, मीर केरियो हमारे साथ ही मौजूद रहिए। ताहा मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं कोरंगी से, जहां पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। अपडेट कीजिएगा ताहा। जी बिल्कुल, देखिए आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए जो है वो तैयारियों का सिलसिला हम कह सकते हैं वो मरहला वार जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और 8 फरवरी के लिए तमाम आरोज़ के पास जो है वो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब जो दूसरा मरहला है उसका आगाज़ भी हो चुका है और तीसरा रोज़ कम्प्लीट होने के बाद अब जो है आज चौथा रोज़ है। और चौथे रोज़ अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी स्क्रूटनी का जो सिलसिला है वो जारी व सारी है। कागजात नामजदगी जो जमा कराए गए थे उनकी जाँच पड़ताल का जो सिलसिला है उनका जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम मुतालिका जो उम्मीदवारान हैं अपनी पार्टियों के, वो अपने मुतालिका आरओ के पास आ रहे हैं, रिटर्निंग अफसरान के पास आ रहे हैं और आने के बाद दिए गए टाइम के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, उनका इंटरव्यू किया जा रहा है, कागजात की जाँच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद जो है वो आरओ कायल हो सकेंगे कि इनका नाम, इन उम्मीदवारान का नाम फॉर्म 32 में होगा या नहीं होगा। फॉर्म 32 है, वो फॉर्म है जो कि आरओ स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल होने के बाद जो है वो निकालता है और हतमी तौर पर ऐलान करता है कि कौन कौन से जिन्होंने आइंदा आने वाले इंतखाबात में जो है वो अपने कागजात को जमा कराने के बाद उनकी जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है और वो क्लियर हैं, वो इंतखाबात लड़ने के कायल हैं। उसके बाद जो है वो पार्टी के ऊपर मुतालिका पार्टी से जो उम्मीदवारान आ रहे हैं उनके टिकट के बाद जो है वो फॉर्म 33 दिया जाता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक पार्टी से मुतादिद हम कह सकते हैं कि उम्मीदवारान जो है एक नशस्त के लिए आ रहे हैं, अपने कागजात उन्होंने जमा कराए हैं, उनकी स्क्रूटनी का जो सिलसिला है वो जारी है सारी है शेड्यूल के मुताबिक। लेकिन फॉर्म 31 जो कि कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद निकाला गया था, उन पे जो है एक नशस्त से एक पार्टी के मल्टीपल कैंडिडेट्स जो है वो हमें नज़र आए। इसी तरह फॉर्म 32 पर भी मुमकिन तौर पर एक पार्टी के मल्टीपल कैंडिडेट्स हमें जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन फॉर्म 33 जो होगा वो हतमी फॉर्म होगा, क्योंकि उसमें पार्टी जो है वो टिकट देगी। टिकट देने के बाद जो है वो हतमी तौर पर ऐलान हो जाएगा कि इस नशस्त से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो कौन सा उम्मीदवार जो है वो इंतखाबात लड़ने जा रहा है। अगर हम ज़िला कोरंगी की बात करें तो ज़िला कोरंगी में MQ
PQM, پیپلز پارٹی, GDA اور جماعت اسلامی کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ متوقع ہے, کیونکہ یہاں پر ہر نشست پر جو ہے ایک پارٹی کے کم سے کم بھی 2 سے 3 امیدوار جو ہے وہ انتخابات لڑیں گے, اور ان کے لیے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے. جمع کرانے کے بعد ان کی اسکروٹنی کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. ساتھ ہی جو کہ اب تک نمبرز بتائے گئے ہیں, اب تک نمبرز کے مطابق آروز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اگر ہم PS 95 کی بات کریں تو PS 95 میں اس وقت جو ہے وہ 21 کے قریب اسکروٹنی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کو منظور کر لیا گیا ہے. برحال ہم کہہ سکتے ہیں مکمل کر لیا گیا, منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کے حوالے سے آرو جو ہے وہ حتمی طور پر 30 تاریخ کو بتائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم PS 93 کی بات کریں تو PS 93 میں جو ہے اس وقت 23 کے قریب امیدواران کے کاغذاتی نامزدگی جمع کرانے کے بعد جو ان کی جانچ پڑتال کا سلسلہ ہے وہ مکمل کر لیا جا چکا ہے. NA 233 کیونکہ وہ ضلع کورنگی میں ہے, NA 233 کی بات کری جائے تو NA 233 میں 26 کینڈیڈیٹس کے جو کاغذات نامزدگی کا سلسلہ تھا ان کو جانچ پڑتال کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے. NA 232 کی اگر بات کریں تو NA 232 میں جو ہے اس وقت 22 کے قریب 22 امیدواران ہیں اب تک جن کے کاغذات نامزدگی کا جو سلسلہ تھا وہ ان کی جانچ پڑتال کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے. ساتھ ہی اگر ہم مزید بھی کانسٹیٹنسیز کی بات کریں جن کے آروز DC آفس کے اندر موجود نہیں ہیں, PS 91, PS 92, PS 93 اور NA 234, یہ تمام 3 NA کی نشستیں اور 7 PS کی نشستیں جو ہیں اس ضلع کرنگی کے اندر موجود ہیں, اور ان تمام ہی نشستوں کے اندر اسکروٹنی کا جو سلسلہ ہے وہ وقفے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے دیے گئے ٹائم کے مطابق جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آ رہے ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے اپنے آپ کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. بہت شکریہ طاہا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اس کے علاوہ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے ساتھ آزاد, جنید, خورشید, اقصیٰ, میر کیریو, یہ ہمیں کراچی کے مختلف حصوں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا سب کا شکریہ. اب ہم رخ کریں گے شعیب مختار کا جو ہمیں اپڈیٹ دیں گے ساؤتھ سے, جنوبی سے. بتائیے گا شعیب, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج چوتھا روز ہے. 4 روز میں جو ہے اب تک جو ہے 100 سے زائد امیدواروں کے ضلع جنوبی میں کاغذات کی جانچ پڑتال جو ہے مکمل کر لی گئی ہے. یہ اہم ترین حلقہ ہے. یہاں سے جو ہے ضلع جنوبی سے 800 سے زائد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہے عام انتخابات سے متعلق جو ہے وہ حاصل کیے تھے, جبکہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 300 سے زائد امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرائے تھے. ضلع جنوبی میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد جو ہے 3 ہے, جس میں NA 239, NA 240 اور NA 241 شامل ہیں, جبکہ یہاں پر صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 5 ہے, جس میں PS 106, PS 107, PS 108, PS 109 اور PS 110 شامل ہیں. مجموعی طور پر جو ہے کراچی میں 1500 سے زائد امیدواروں نے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. آج بھی جو ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. ضلع جنوبی پیپلز پارٹی کا گڑھ بھی تصور کیا جاتا ہے. بلدیاتی انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جو ہے ضلع جنوبی میں کامیاب ہوئی. ضلع جنوبی کے اگر کینڈیڈیٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر NA 241 کی نشست پر پیپلز پارٹی کے سلیم مانوی والا امیدوار ہیں, جبکہ NA 240 کی نشست پر وہ MKM کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار امیدوار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ضلع جنوبی سے پاکستان سنی تحریک کے صدر ثروت اعجاز قادری, تحریک لبیک پاکستان کے رہنما اور معروف تاجر شرجیل گوپلانی بھی جو ہے وہ انتخابات میں ضلع جنوبی سے ہی حصہ لے رہے ہیں. کاغذات کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جو ہے وہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا. جن امیدواروں کے کاغذات منظور نہیں ہو رہے وہ اپنے اعتراضات کے ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر 3 جنوری تک الیکشن ٹریبیونل میں درخواستیں دائر کریں گے. بعد ازاں 10 جنوری کو جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہائی کورٹس کے ججز پر تشکیل دیا گیا الیکشن ٹریبیونل جو ہے تمام تر اعتراضات کی اور جو درخواستیں انہیں امیدواروں کی جانب سے موصول ہوں گی اس کی سماعت کرے گا. آج جو ہے 14 روز ہے اور امیدواروں کی آمد کا سلسلہ جو ہے اس وقت ضلع جنوبی میں بھی جاری ہے. بہت شکریہ شعیب, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ضلع غربی میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل تاخیر سے شروع ہوا. مزید بتائیں گے رضوان احمد.
इलेक्शन 2024 के जो सेकंड मरहला है उसमें कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के अमल का आज चौथा रोज़ है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 3 कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तें हैं जहां पे उम्मीदवारों के जमा करदा फॉर्म की स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है, लेकिन ये अमल ताख़ीर का शिकार है और उसकी वजह ये बताई जाती है, इलेक्शन कमीशन के ज़राए का ये कहना है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी आमद ताख़ीर से होती है और वो जल्द चले भी जाते हैं। इस वजह से कुछ उम्मीदवारों को परेशानी का सामना भी देखने में आ रहा है। ताहम जो रिटर्निंग अफसरान का मातहत अमला है उनका मौक़िफ़ ये है कि पोलिंग स्टेशनों के दौरे कर रहे हैं रिटर्निंग अफसरान, इस वजह से वो दफातर वक्त पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए जो कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी है उसके आदाद शुमार जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के अमले को बर वक्त मौसूल नहीं हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के। उसकी वजह ये बताई जाती है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो बर वक्त कागजात की स्क्रूटनी के हवाले से अपडेट फराहम नहीं कर रहे हैं और हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वेस्ट ने इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वेस्ट के मुतादिद जो है वो रिमाइंडर भी भेजे हैं कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और ये आदाद शुमार जो है बर वक्त फराहम किए जाएँ ताकि इलेक्शन कमीशन के हेड क्वार्टर को जो है बर वक्त आगाही फराम की जा सके। लेकिन 3 रोज़ जो गुज़रे हैं उसमें ये सिलसिला हमें जो है वो दिखाई नहीं दिया और इसमें जो है इस ख़राबी को जो है वो दूर नहीं किया जा सका। आज चौथा रोज़ है, देखना ये होगा कि स्क्रूटनी का अमल जब मुकम्मल होगा तो उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। क्या वही ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को डेटा फराम करने के हवाले से या फिर जो है उसमें कुछ बेहतरी आती है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि सुबह सवेरे से ही जो उम्मीदवार हैं कागजात की स्क्रूटनी जांच पड़ताल के हवाले से उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और वो काफ़ी ताख़ीर का जो है वो आरोज़ के ना होने की वजह से ताख़ीर से उनकी जो कागजात की स्क्रूटनी है उसके अमल का आगाज़ किया गया है और इस सिलसिले में यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनका ये मौक़िफ़ भी है कि किसी के भी कागजात को हतमी तौर पर मंजूर होने की जो बात है वो 30 दिसंबर से कबल जो है वो नहीं की जा सकती। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ जो तहकीकाती इदारे हैं वहाँ से क्लियरेंस आना अभी बाकी है, जिसमें FBR है, नैब है और दीगर तहकीकाती इदारे हैं। वहाँ की जो क्लियरेंस रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये चीज़ सामने आ सकेगी कि आया जो कैंडिडेट हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाते हैं या मुस्तरद किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें अपडेट किया। कौमी और सूबाई असम्बली की अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने गटर के ढक्कन गायब हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की अक़लियतों और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई दफ्तर जो बिल्कुल शारा इराक सदर के अंदर मौजूद है, यहाँ पर यह सूरत है कि आज मुख्तलिफ उम्मीदवार पार्टियों के यहाँ पर कागजात नामजद जमा कर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के सामने सूरत ये है कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मेरे सामने सीधे हाथ पर है, लेकिन ये शारा इराक की मेन सड़क है। यहाँ पर ये गटर नाला है, यहाँ पर गटर नाला का होल जो है इसके अंदर ढकना नहीं है। यहाँ पर वकला यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से हाई कोर्ट जाते हैं। मेरे सीधे हाथ पर यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस है, इस हाथ पर जो है हाई कोर्ट है, इस हाथ पर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दफ्तर है और यहाँ इस हाथ पर ये सदर के तमाम होटल्स हैं। शारा अहम शारा है। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये गटर का होल है। मेरा कैमरा में दिखा सके फरहान ये दिखाना ज़रा, ये लोग यहाँ से आते हैं, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। और यहाँ से जैसे वकला यहाँ से गुजरते हैं, मुख्तलिफ अहम शख्सियात गुजरते हैं या पासपोर्ट के हवाले से यहाँ पर कई लोग आते हैं। जज साहब वाली गाड़ियाँ यहाँ से जारी है, देखिए जज साहब गाड़ियाँ यहाँ से जारी है, यहाँ पर कई ऐसे अहम शख्सियात गुजरती है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने ये गटर का होल जो है यहाँ पर ढकना है ही नहीं। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ से अवामी मुंतखब नुमाइंदगान जो है ख़ासतौर पर मखसूस नशिस्त पर उनके कागजात की जांच पड़ताल का अमल भी जारी है। लेकिन सूरत हाल ये है कि KMC या शहरी इंतजामिया की जानब से इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं कि इलेक्शन कमीशन के सामने मेन शारा इराक पर ये गटर का जो है ढकना होल पर है ही नहीं। अगर कोई इत्तफाकन से इसके अंदर गिर जाए
तो वापस निकलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मेरा जैसा बंदा कद का छोटा टिकना जो बंदा हुआ है अगर इसके अंदर गिर गया उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सूरत हाल ये है कि KMC हो या शहरी इंतजाम की जिम्मेदारी बनती है कम से कम ऐसे इदारे जिनके बाहर से जो गटर नाले जिनके होल हैं उन पर ढकना लगा, लेकिन ढकने शहर के कई इलाकों में नहीं है। लेकिन मेन इशारा है इलेक्शन कमीशन के सामने ये गटर का होल है जिसके ऊपर ढकना है ही नहीं। शहरी इंतजामिया कहाँ है, बाकी इंतजामिया कहाँ है, कोई पूछने को तैयार नहीं। लेकिन कराची शहर की सूरत हाल ये है कि अहम मुकामात के ढकने गायब हो चुके हैं। जी, कोरंगी कॉजवे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कार सवार नौजवान को गाड़ी रोकते ही थप्पड़ मार दिया। मुतासरा शहरी ने सिटी 21 की टीम को रोक लिया। बात करेंगे इस हवाले से अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा क्या वाकया है? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार वालों की एक और बदमाशी सामने आई है कि यहाँ पर शहरियों को रोककर उनको थप्पड़ मारा जा रहा है। एक मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं आप गाड़ी में मौजूद है, हुआ क्या था? ये बदमाशी सामने आई? गाड़ी रोकी, उन्होंने बोला आप साइड पे क्यों नहीं लगा रहा, मैंने आपके सामने साइड पे लगी हुई गाड़ी, उन्होंने मुझे मुंह पे चमाट मार दी, बस दैट्स इट। एहलकार ने मारा, कुछ भी नहीं, बदतमीजी करने पे आ गए, मैं क्या गाली गलौज करूं इस इतने बड़े आदमी के साथ, दैट्स इट। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है वो यहाँ पर ये जो कोरंगी का जो रोड जा रहा है यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर मेरे कैमरा मैन अदनान जी का दिखाएंगे आपको। ये वो ट्रैफिक एहलकार जो है वो यहाँ पर मौजूद है और गाड़ी वाले को रोक कर जो है वो कहा यह जा रहा है कि शहरी को थप्पड़ मारा है। थप्पड़ क्यों मारा है इसका नहीं पता, क्योंकि अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं यहाँ पर मुतअद्दिद शहरियों ने शिकायत की है कि ट्रैफिक एहलकार का रवैया जो है वो काफी खराब होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। हम यहाँ से जब गुजर रहे तो हमने देखा ये पहला रवैया नहीं है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का, ये ऐसे मुतअद्दिद वाकयात है जो कि ऐसे होते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। कराची के सनतकारों ने हुक्मरानों से शहर की इंडस्ट्रीज का दौरा करने का मुतालबा किया है। साबिक सदर कराची चैम्बर यूनुस बशीर ने कहा है कि बिजली और गैस की चोरी और लॉसेस की रकम हम कब तक अदा करेंगे। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अशरफ खान से, बताइएगा। कारों का एक ही कंसर्न है कि बिजली की कीमत नुमाया इजाफा हो गया, साथ ही गैस की कीमत में भी इजाफा हुआ। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? कराची चैम्बर के साबिक सदर यूनुस बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है, इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो अशरफ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना इस मौजू पे मुझे बोलने का मौका दिया। बात यह है कि आप मेरी फैक्ट्री में इस वक्त खड़े हुए हैं, आप जाके मेरी फैक्ट्री की पोजीशन देख लें कि क्या चल रही है और कितनी बंद है। बात यह है कि ये जो बिजली के रेट टैरिफ जो बढ़ाए गए वो भी एक ठीक है, उनको लॉसेस हो रहे हैं कैपेसिटी के उसकी वजह से, या लाइन लॉसेस हो रहे हैं, सब कुछ है, बट इसका ज़िम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। मैं अगर आपकी बिजली चोरी हो रही है, आपकी बिजली चोरी हो रही है, उसके पैसे भी आप इंडस्ट्री से ले रहे हैं। आपकी गैस चोरी हो रही है तो उसके पैसे भी आप हम पे ले रहे हैं। आप फर्टिलाइज़र को आप सब्सिडी दे रहे हैं, उसके पैसे भी मुझ पे चार्ज कर रहे हैं। आप डोमेस्टिक को सस्ती गैस दे रहे हैं, उसके पैसे भी मुझसे ले रहे हैं। तो मुझे बात बताएं कि ये किस तरीके से होगा, क्योंकि आपके इसके अलावा भी बेइंतहा हमारे इश्यूज़ हैं। सिर्फ एक ये बिजली गैस पानी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से इशू हैं। और ख़ास कर कराची में तो आपको पता है, आप उधर पंजाब में देख ले, पानी 50 रुपये का 1000 गैलन मिलता है, यहाँ 1000 रुपये का 1000 गैलन मिलता है, और उसमें भी पानी नहीं है। आप यकीन करें कि इस वक्त लोगों की सोच ये हो गई है कि इस मुल्क में वो इंडस्ट्री ना लगाए जिसमें पानी, बिजली और गैस की ज़रूरत नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस मुल्क में इंडस्ट्री ना लगाए, ख़ास करके इस शहर कराची में। ये लोगों की सोच हो गई, ये हालत हो गए। मुझे कोई चीज़ सीरियसनेस नज़र नहीं आती। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे सनतकारों ने साफ मुतालबा किया कि जो भी इकदाम उठाए गए हैं, अगर बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने ही फैसला है, लेकिन साथ ही जो इजाफी बोझ डाला गया। अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। यूएन और कौमी असम्बली चलाने के लिए लियारी वाले भी मैदान में आ गए। लियारी गवर्नमेंट स्कूल में लियारी मॉडल यूनाइटेड नेशन का इनेकाद किया गया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। लियारी गवर्नमेंट स्कूल में लियारी मॉडल यूनाइटेड नेशन का इनेकाद। 120 से ज़ायद तलबा ने शिरकत करके मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। कि आप लोग देखिए वेल एजुकेटेड नहीं हो, आप लोग वेल ट्रेंड नहीं हो, तो आप ऐसे कैसे आप मेरे साथ चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो बच्चा मतलब लियारी गवर्नमेंट स्कूल में मुनक्किदा लियारी मॉडल यूनाइटेड नेशन 4 मुख्तलिफ कमेटियों पर मुश्तमिल रहा, जिनमें नेशनल असम्बली, फ़लस्तीन पर इसराइली बर्बरियत, UNHRC और लियारी स्ट्रेटेजिक कमेटी शामिल थी। ऑर्गेनाइजर रेहान सोमरो और स्कूल मुंतज़मीन हसनैन अब्बास ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों का मकसद लियारी वालों को अपने मसाइल पर बात करने के लिए मौके फराहम करना है। करने का मकसद ये था क्योंकि हमने देखा है कि लियारी की आवाम इस तरह की, कि लियारी की आवाम में एक तो बहुत ज़्यादा जोश है, जज्बा है, और दूसरी बात कि लियारी की आवाम को नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बस वो अपनी नॉलेज को जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते। लियारी का आप कोई भी बच्चा उठाएं,
उसमें टैलेंट ही टैलेंट मिलेगा हर बच्चे के अंदर। तो बस उनको सिर्फ मौके की ज़रूरत है। तो वी आर ऑलवेज़ ओपन, हमारा वेन्यू ये हमेशा लोगों के लिए ओपन है। कमेटियों में सियासी, समाजी, माशी और माशरती मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने वाले तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि लियारी के मसाइल को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इन पर बात करने का मौका मिला है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई मिली, मतलब यहाँ पे रिसर्च करी हमने, नई चीज़ें सीखी। मुझे ये इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें हम अपने ओन से अपनी फीलिंग्स बयान, जो हमारी लियारी के मसाइल हैं वो उनको कैसे हल कर सकते हैं हम लोग, और भी बहुत कुछ। तो मैं फीडबैक दूंगी कि ये बहुत अच्छा है। तलबा ने तकरीर और मुबाहिसों में हिस्सा लिया और इलाकाई, मुल्की और आलमी मसाइल पर आगाही दी। कैमरामैन शरियार अली के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।